Hello everyone, let's get started. All right, I'm Hassan Raza Bukhari and I am uh, data science lead for Developer Student Club Nust. I'll give a proper introduction about myself later on, but for now let's talk about what we're going to do in the data science sci-fi. I welcome you all over here. You guys have taken a great step towards learning about a lot of exciting things. What is great about data science sci-fi is that we have industry experts who are willing to give you some meaningful and useful information that you're not going to get from anywhere else. So we have got Alexia, who is a Google expert in machine learning, and we have got Robert, who is going to talk to us tomorrow. All right, so in data science sci-fi, you're going to get a lot of information about what is what data science actually is and how it is making a difference in the world. And then I'm going to talk about different things related to how you're going to perform data science. Basically, we're going to talk about data analytics in specific. All right, let me give you a basic agenda for today and then we can get started. So first of all, Alexia is going to talk about what is data science and how it is helping in solving the modern day problems. And then since today we have only 1 hour, I'm going to keep it short and talk about why should one learn R and basic introduction to R, so that everyone is on the same page. As most of you would not know about the programming language R, you would get a good introduction today, and tomorrow we can get started with the basic analytics stuff. Now I would like to give it to Alexia to continue from here. She is brilliant in her field. She is going to introduce herself and tell you what is data science and how it is making difference in this world. Hi, everybody. Before I can see screen, is it okay? You can watch my slide? Okay, great. So let's go. So before defining what is data science and how is it helping to solve modern day problems, let's begin by looking at some images. And I will let you think about the relationship between data science and those images. First one. Before getting deeper and explaining these images, let me introduce myself. I'm Alexia. I'm the founder of the Datactic company. As a data scientist, I always work with my clients to help them solve business problems and make their applications smarter. My goal is to get insights from their data. Another part of my activity is doing data training for students or professionals such as data visualization, big data, machine learning, or deep learning. I like to share my knowledge, so I also give conferences and I have written 2 books. The first one is about AI and neuroscience, but it's only available in French. The second one will be published in early 2021 and will be available in English. It will be a deep learning cookbook and will cover many facets of this AI topic. And to finish,
I have been a machine learning GDE for 2 years. My TEDx talk on AI and neuroscience is available on YouTube, and I've got a good news for you. It has been translated this week into English and will be available very soon into Urdu. So feel free to watch it and add a comment if you like it. I suggest that you go back to the images viewed at the beginning of this presentation. Here, it's fraud detection. Banking fraud has been an ever-growing issue with huge consequences to banks and customers alike, both in terms of financial losses and trust and credibility. With data science, we are now able to build a machine learning model for detecting credit card fraudulent transactions in real time. These machine learning applications are able to detect and recognize thousands of patterns as opposed to rule-based systems. I don't know how many people in this conference have already encountered this problem, but in my case, I've already been hacked twice, and I always use secure and reputable websites. Uber. Uber has reinvented transportation using data science. With more than 8 million users, 1 billion Uber trips, and 160,000 plus people driving for Uber across 449 cities in 66 countries, Uber is the fastest growing startup at the top of its game. If you have ever booked an Uber, you might know how simple the process is. Just press a button, set the pickup location, request a car, go for a ride, and pay with the click of a button. Behind the scenes, there is the big data. It collects and leverages for insightful and intelligent decision-making. Big data and data science are at the heart of everything Uber does. Search pricing, better cars, detecting fake rides, fake cards, fake ratings, estimating fares, and driver ratings. Here, in the industry, predictive maintenance is able to detect anomalies in your operation and possible defects in equipment and processes even before they become critical. Predictive maintenance uses historical and real-time data from various parts of the operation to anticipate problems before they happen. The Internet of Things, artificial intelligence, and integrated systems allow for different assets and systems to connect, work together, and share, analyze, and action data. Predictive maintenance brings several cost savings, such as minimizing the time the equipment is being maintained, minimizing the production hours lost to maintenance, or minimizing the cost of spare parts and supplies. Predictive maintenance programs have been shown to lead to a tenfold increase in ROI. And then, finally, in our daily lives, virtual assistants help to find information or perform tasks that are more or less useful. I grant you that. Hey, Magic Assistant, could you please add cheese to the shopping list? Could you tell me a joke, please? Could you turn off
the living room light, please. In all these use cases, the data is at the heart of all concern. So let's focus on data. Data is a basic description of reality. Data is used as a basis for making calculations or drawing conclusions. It can be numbers, text, images, and sounds. If I say to you the number 23, you would not know what it means. But if you add a context, such as basketball, you would find the best basketball player of all time, Michael Jordan. If you add a context, such as a birthday, you would find that it is the age of your brother, maybe. This 60 seconds infographic visualizes what happens in just 1 minute on the web. The number of Google searches, Facebook posts, WhatsApp messages sent, Netflix videos watched in 60 seconds is truly phenomenal. Data is bigger, more informative, more important than ever. Data is everywhere on the web, but also in all companies. Data is changing the way companies operate and creating more streams of data insights. Now, everyone wants to transform information into insights. So now we have a better understanding of data. Let's go into the data science definition. Wikipedia defines data science such as an interdisciplinary field that uses scientific methods, processes, algorithms, and systems to extract knowledge and insights from many structural and unstructured data. But what are the necessary skills for a data scientist? This popular Venn diagram is used to explain what data science is. This diagram is composed of 3 main areas: hacking skills, math and stat knowledge, and substantive expertise. Hacking skills are necessary for working with a lot of data that must be collected, filtered, stored, analyzed, manipulated, and so on. Hacking skills is like IT skills. Substantive expertise is the ability to ask good questions. And the last area is math and statistics knowledge. Math and statistics knowledge allow a data scientist to choose appropriate methods and tools to extract insight from data. This diagram was created by Drew Conway. Drew Conway writes, "To me, data plus math and statistics only get you machine learning. What is great if that is what you are interested in, but not if you are doing data science. Science is about discovery and building knowledge, which requires some motivating questions about the world and hypotheses that can be brought to data and tested with statistical methods." Each
of the three data science disciplines has its own excellence. Statisticians bring rigor. Machine learning engineers bring performance. And analysts brings speed. You're probably wondering, how does a machine to acquire information, making links, reasoning, and then generating new knowledge? Yes, quite simply, it must be able to learn. One of the ways for a machine to learn is based on statistical artificial intelligence, based on data. I think that the term machine learning is likely familiar to you. So let's start with an example. Let's imagine that you are a real estate agent and that you have collected a lot of information on properties. For each property, you have collected information such as the size of the garden, the surface area of the lounge, the number of rooms, the sun exposure, geographical location, full of information, and then its price. By providing all this data to a machine, the machine will be able to learn how to predict the price of a property. How? By performing statistical calculations, by making links between all this information. At no time, you're not going to step in and tell it exactly how to accomplish this task. But where your role is primordial, it's in the data that you are going to provide it. If you don't give it enough representative examples, the machine will not be able to predict well all possible cases. Currently, AI, artificial intelligence, performs only simple tasks, specialized and repetitive. Big data is a process of handling large data. It processes huge volumes of data and generates insights. It requires specialized and often innovative technologies and techniques in order to efficiently use the data. Data science is an umbrella term that encompasses all of the techniques and tools used during the life cycle stage of useful data. Data science consists of analyzing data by understanding patterns within data and making decisions. So don't confuse these two terms. With data, you can do incredible things. You are very lucky because with the internet, you can learn what you want, when you want. So feel free to read blogs, books, watch videos, or use learning platforms such as Coursera, edX, Data Bootcamp, Google Quick Lab, and so on. I wish you all, the future data heroes, an excellent conference. Thank you for your attention, and thank you to the organizer for inviting me to this event. Thanks. Thank you, Alexia. It was a very enlightening talk, and everyone, including me, got to learn a lot. Thank you again for your time. Thank you. All right, before we get started, I want to ask, is there anyone who does not understand Urdu? Please send a message if there is anyone. I'm sorry, but I don't speak Urdu. Of course.
All right, Alexia. I'm going to take the section from here, session from here in Urdu because some people are requesting that they're not able to understand in English. Okay. So, if you want to stay, you're welcome. If you'd like to leave, that's up to you. Okay. Thank you very much. Have a good conference. Thank you. All right. I would start by introducing myself. I am Hassan Raza Bukhari, data science lead at DSC NUST, and I am doing data science freelancing. I've done projects in Python and projects in R, so I have knowledge of both of these languages, and I will tell you why we have gone with R. And in addition to that, I'm a Microsoft Learn student ambassador, Udemy instructor, and vice chair publicity at IEEE SEEKS. You can reach me out on my GitHub or my LinkedIn. The links are over here. ओके अब यहाँ से उर्दू में बात करते हैं ताकि सबको समझ आए, जिन लोगों को इशू हो रहा था उन लोगों को भी ताकि समझ आए। ओके, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पाइथन डाटा साइंस और डाटा एनालिसिस के लिए सबसे अच्छी लैंग्वेज है, तो हम आर क्यों कर रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि हमें दोनों लैंग्वेजेस को साथ लेके चलना चाहिए। मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, अगर आप लोग फ्रीलांसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखें तो आपको दोनों लैंग्वेजेस आनी चाहिए। जब आप कोई एक लैंग्वेज कर लेते हैं इनमें से डाटा एनालिसिस के लिए, तो दूसरी पे स्विच करना इतना इशू नहीं है। पाइथन बहुत ही सिंपल है, आर भी बहुत सिंपल है। आप इन दोनों में से कोई भी करते हैं तो आप दूसरी लैंग्वेज पे इजीली मूव कर सकते हैं। आर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि पाइथन में या फिर किसी और लैंग्वेज में नहीं है। इसकी कुछ बहुत बेहतरीन स्ट्रेंथ्स हैं, जैसे कि इसके कुछ पैकेजेस हैं जो कि एक्सक्लूसिवली सिर्फ आर में अवेलेबल हैं, जैसे कि ggplot2। ggplot2 जो भी डाटा एनालिटिक्स में या डाटा साइंस में है, उसको आइडिया होगा कि ggplot2 बहुत ही ब्रिलियंट ग्राफिक्स क्रिएट करता है, और वो भी मतलब एफर्टलेसली। बहुत ज़्यादा आपको इशू नहीं होता, उस पर आपको बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन मिल जाती है और आप बहुत बेहतरीन ग्राफिक्स बना सकते हैं। जबकि रिलेटिवली देखा जाए तो पाइथन में उस लेवल का कोई ग्राफिक्स का मॉड्यूल नहीं है। बाकी हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन आपको उस लेवल तक पहुंचने के लिए, उतना अच्छा बनाने के लिए कुछ ज़्यादा एफर्ट चाहिए होती है। इसी तरह कुछ पैकेजेस हैं जिस तरह डीप लायर। अगर आप लोगों में से किसी ने एसक्यूएल पे काम किया हो या सीखी हो, तो डीप लायर बहुत ही इंट्यूटिवली डाटा फ्रेम में से डाटा फेच और चेंज करने की ऑप्शन देता है। तो इसी तरह पाइथन में पैंडास है, लेकिन पैंडास उतना सिंपल नहीं है जितना डीप लायर है। डीप लायर में बहुत सारी चीज़ें सिंपल हो जाती हैं, पैंडास आपको कंट्रोल ज़्यादा देता है। तो दोनों में अपने फायदे और नुकसानात हैं, लेकिन आपको कुछ प्रोजेक्ट्स आर में मिल सकते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स पाइथन में मिल सकते हैं, तो आपको दोनों लैंग्वेजेस आनी चाहिए अगर आप फ्रीलांसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं ज़्यादा इस चीज़ पे वो नहीं करना चाह रहा बात, तो हम डायरेक्टली आर स्टूडियो में आते हैं और इसमें बात करते हैं। अच्छा, अगर आप यहाँ तक पहुँचना चाह रहे हैं कि मतलब सब चीज़ें सेट करना चाह रहे हैं, तो आपको सिंपली सबसे पहले आर डाउनलोड करनी पड़ेगी। गूगल पे सर्च करें डाउनलोड आर, उससे आपका ना लैंग्वेज जो आर है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो उसके बाद आपने ये IDE आर स्टूडियो ये डाउनलोड करना होगा। आर स्टूडियो सबसे बेहतरीन है आर के लिए। आर का अपना इंटरप्रेटर भी सब कुछ मतलब उस पर आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन आर स्टूडियो आपको जिस तरह का इन्वायरमेंट देता है काम करने का, उस तरह और किसी उसमें नहीं है। तो आर स्टूडियो की बात करता हूँ। आर स्टूडियो देखने में काफ़ी सारी इसके अंदर चीज़ें आती हैं, तो शुरू में लोग कंफ्यूज होते हैं। तो बेसिकली बिल्कुल सिंपल चीज़ है। ये जो है ये वाला एरिया जहाँ पर इस वक्त कर्सर है, ये वाला एरिया हमारे पास, यहाँ मैं टाइप कर रहा हूँ, ये है हमारे पास इंटरप्रेटर। आप यहाँ पर लिखेंगे, आपका कमांड एग्जीक्यूट होगा और उसका रिजल्ट उसके नीचे शो होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ 10 लिखता हूँ तो 10 नीचे प्रिंट हो गया। ये एक 10+5 लिखता हूँ तो ये भी इसका रिजल्ट यहीं पे शो हो गया। ये आपके पास लाइव इंटरप्रेटर है, यहाँ पे आप जो भी राइट करेंगे कमांड वो आपके पास नीचे शो होती रहेगी। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर
इन्वायरमेंट है, यहाँ पर आपके पास पैकेज वाइज इन्वायरमेंट भी होती है और ग्लोबल इन्वायरमेंट भी होती है। बेसिकली ग्लोबल इन्वायरमेंट में रहें शुरू में, जब आपको आइडिया नहीं है ज़्यादा चीज़ों का, तो आपको यहाँ पर ना जो भी आप वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे वो और उनकी थोड़ी सी वैल्यूज़ आपको शो होती रहेंगी अगर उसमें मल्टीपल वैल्यूज़ हैं। उसके बाद यहाँ पे इसके नीचे वाला सेक्शन जो है, अगर पहले ऊपर वाले की ही बात कर लें, उसको कंप्लीट कर लें। ओके, यहाँ पर आपकी हिस्ट्री है, जो कि कमांड आपने एग्जीक्यूट किए होंगे वो उस सब की हिस्ट्री यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी। इसके अलावा कनेक्शंस का टैब है, यहाँ पे आप आर के ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं। ठीक है, बेसिकली आपका जिस चीज़ से काम होगा वो इन्वायरमेंट और हिस्ट्री। उसके बाद अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पर आपके पास फाइल्स हैं, यहाँ से आप नेविगेट करके किसी भी फाइल तक पहुँच सकते हैं और उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर प्लॉट्स हैं, जब आप प्लॉट्स क्रिएट करेंगे तो वो यहाँ पर शो होंगे इस सेक्शन में। जब आप प्लॉट क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली इस टैब में ये स्विच हो जाएगा। उसके अलावा आपके पास यहाँ पर पैकेजेस हैं। पैकेजेस बेसिकली जिस तरह पाइथन में दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लाइब्रेरीज होती हैं, तो ये पैकेजेस हैं आर के अंदर। पैकेजेस बेसिकली आपको कोई बनी बनाई फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने डाटा एनालिसिस करना है, आप डीप लायर का पैकेज इंपोर्ट करेंगे और आप उसको इस्तेमाल करके स्विफ्टली बनी बनाई फंक्शनैलिटी से आप उस पर एनालिसिस कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपके पास हेल्प का टैब है। यहाँ पर आपको किसी फंक्शन का कुछ समझ नहीं आ रहा तो हेल्प के टैब में आप सर्च करेंगे तो आपको उस फंक्शन के बारे में, उस पैकेज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जो चीज़ भी आप सर्च करेंगे। इसका मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ कि डायरेक्टली यहाँ से सर्च किए बगैर आप किस तरह कर सकते हैं। बेसिकली आपने अगर क्वेश्चन मार्क लिखा है, क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद आगे आप किसी भी चीज़ का, किसी भी फंक्शन का नाम लिखते हैं। लेट्स से हम लिख लेते हैं डाटा सेट का नाम, तो यहाँ पर ये आ गया कार्स डाटा सेट। यहाँ पर इस डाटा सेट की सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। बेसिकली कोई भी चीज़, एंटिटी जो कि आर के अंदर एग्जिस्ट करती है, उसकी हेल्प आपको क्वेश्चन मार्क और आगे उसका नाम लिख के, अगर आपने फंक्शन का देखना है, फॉर एग्जांपल आपने पेस्ट फंक्शन का देखना है, तो आपने आगे से ये पैरेंथेसिस नहीं लगानी, सिर्फ फंक्शन का नेम लिख के एंटर दबाएंगे तो यहाँ पर आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन उसकी विजिबल हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास ये व्यूअर है। ये आपके पास जो चीज़ें यूज़ होंगी वो ये फर्स्ट 4। इसके अलावा आप अगर कोई इसके अंदर आर के अंदर एक और फंक्शनैलिटी है कि आप किसी चीज़ को, किसी डाटा फ्रेम को या फिर डाटा सेट को व्यू कर सकते हैं। और इसके अंदर आर के अंदर बहुत सारे डाटा सेट्स पहले से अवेलेबल हैं। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अगर आप डाटा का फंक्शन कॉल करते हैं तो यहाँ पर आपके पास ये बहुत सारे डाटा सेट्स अवेलेबल हो गए जो कि आर के अंदर बिल्ट इन है, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कोई डाटा सेट इंपोर्ट करना चाहते हैं, बेसिकली यहाँ पर आपको उसका नाम लिखना होगा इसके अंदर, डबल कोटेशंस के अंदर। अब हमने कार्स का डाटा सेट इंपोर्ट कर लिए। अगर आप डाटा सेट को एक, वैसे तो आप डाटा सेट को आप यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि ये इसका ग्लोबल इन्वायरमेंट में कार का वेरिएबल ऑलरेडी बन गया जब आपने इसको इंपोर्ट किया। जब आप कार्स का वेरिएबल यहाँ पे कार्स लिख के एंटर दबाते हैं तो कार्स का पूरा डाटा फ्रेम यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको एक आर के व्यूअर में देखना चाहते हैं तो व्यू के फंक्शन के अंदर वेरिएबल को इनक्लोज करेंगे, एंटर दबाएंगे तो यहाँ पर आपके पास इसका डाटा फ्रेम व्यूअर खुल जाएगा। ओके, ये मैं डाटा फ्रेम्स और इन चीज़ों पे आहिस्ता आहिस्ता आता हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोग यहाँ पर होंगे जो कि इस वक्त आर का उनको बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो मैं चाह रहा हूँ कि सारे लोग आज सेम पेज पे आ जाएं और कल के सेशन में हम लोग प्रॉपरली डाटा एनालिसिस और जो आर के कोर जो पैकेजेस यूज़ होते हैं इस चीज़ के लिए, उस पर हम काम करेंगे। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर से। आर के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली जो, जिस तरह ये कहते हैं ना पाइथोनिक स्टाइल, पाइथन का पाइथोनिक स्टाइल होता है, इस तरह आर का जो असाइनमेंट का स्टाइल है वो बेसिकली एक ये इस सिंबल से होता है, ये लेसन का साइन और आगे डैश। तो उसके बाद आप जो भी वैल्यू लिखेंगे वो उस वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। होपफुली आप लोग प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से होंगे तो इतना आइडिया होगा कि ये वेरिएबल है और ये उसकी वैल्यू है। तो इसके अलावा आप ट्रेडिशनल जो इक्वल टू साइन है वो भी यूज़ करके वैल्यू आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। अब देखें, जब मैंने इसमें यहाँ पे वैल्यू वो चेंज की तो यहाँ पर
अपडेट होगी। इस तरह आपको ना आइडिया होता रहेगा कि कौन कौन सी वेरिएबल्स इस वक्त आपके पास हैं और उसके अंदर वैल्यू कौन सी स्टोर्ड है। मोस्टली आपके पास वेरिएबल्स इस टाइप के होंगे जिसके अंदर वैल्यूज एक से ज़्यादा होंगी, वेक्टर्स होंगे, मैट्रिसेस होंगे, डाटा फ्रेम्स होंगे। तो उसका ना आपको कुछ थोड़ा सा स्लाइस नज़र आ रहा होगा यहाँ पर कि कितनी वैल्यूज़ का थोड़ा सा पार्ट। ओके, तो इसके आगे चलते हैं। अब ये जो अभी मैंने वैल्यू इसमें 11 स्टोर कराया है, तो आप किसी भी चीज़ का टाइप देखना चाहते हैं ना, तो उसके लिए क्लास का फंक्शन है। क्लास एक्स करेंगे तो आपके पास उसकी टाइप रिटर्न हो जाएगी न्यूमेरिक। तो बेसिकली न्यूमेरिक जो है, जिस तरह दूसरी लैंग्वेजेस में होता है कि नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, फ्लोट्स होते हैं और कैरेक्टर्स होते हैं या फिर स्ट्रिंग्स होती हैं, तो इसके अंदर बेसिकली जो बेसिक डाटा स्ट्रक्चर है ना, वो वेक्टर है। डिफरेंट टाइप के वेक्टर्स होंगे। वेक्टर का भी मैं आपको बताता हूँ कि वो एक्चुअली वेक्टर किस तरह है। इस वक्त हमारे पास जो एक वैल्यू स्टोर हुई है, ये सिंगलटन वेक्टर है, मतलब इसके अंदर सिर्फ एक वैल्यू है। ऑल्दो ये है वेक्टर, जिस तरह एक अरे होती है ना उसी तरह लेकिन ये सिंगल वैल्यू का वेक्टर है। अगर हम एक सीक्वेंस जनरेट करना चाहते हैं, इससे हम अच्छा डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। तो ये जो कॉलन का ऑपरेटर है, 1:20 मीन्स 1 to 20, ये हमारे पास सीक्वेंस जनरेट करेगा 1 से लेके 20 तक। अगर हम इसको ए में स्टोर कर लेते हैं, उसके बाद इसकी क्लास चेक करते हैं, तो इस वक्त ये एक इंटीजर वेक्टर है। तो अगर हम इसकी लेंथ चेक करना चाहते हैं, तो लेंथ हमारे पास 20 है। अब देखें इसके अंदर 20 वैल्यूज़ हैं, तो ये एक 20 लेंथ का वो वेक्टर है। लेकिन अगर हम इसकी लेंथ चेक करें, तो ये 1 लेंथ का वेक्टर है। हैं दोनों ही वेक्टर्स, बट एक सिंगलटन वेक्टर है और एक के अंदर डिफरेंट काफ़ी सारी वैल्यूज़ हैं। तो बेसिक डाटा स्ट्रक्चर जो है ना, वो वेक्टर है। और इस तरह का वेक्टर जिसके अंदर सिर्फ एक ही टाइप की वैल्यूज़ होती हैं, जिस तरह आप जब चेक कर रहे हैं तो आपके पास इंटीजर ही आ रहा है, तो इस वेक्टर को एटॉमिक वेक्टर कहते हैं। आर के अंदर एटॉमिक वेक्टर्स 3 टाइप के होते हैं, एक न्यूमेरिक, एक इंटीजर और एक करेक्टर वेक्टर। करेक्टर वेक्टर का भी देखते हैं। अगर हम इस एक वेरिएबल में या फिर इसका नाम नेम रख लें और इसमें मैं अपना नेम स्टोर करता हूँ, तो अगर इसको मैं प्रिंट करता हूँ, तो ये सिंगलटन करेक्टर वेक्टर है। तो इसकी क्लास कंफर्म करते हैं। ये देखें, ये करेक्टर वेक्टर इसमें हमारे पास रिटर्न हो रहा है। तो इसी तरह हमारे पास ये तीनों जो हैं, इसके अंदर एक ही टाइप के ऑब्जेक्ट्स आएंगे। अगर इसके अंदर करेक्टर है तो इसके अंदर करेक्टर ही रहेगा, और इसके अंदर अगर इंटीजर है तो इंटीजर ही रहेगा। ये होते हैं एटॉमिक वेक्टर्स। अगर हम एक और डाटा स्ट्रक्चर है आर के अंदर जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप की वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, उसको लिस्ट कहते हैं, लेकिन वो बहुत ही रेयरली यूज होती है हमारे पास। यूजुअली जो वेक्टर्स होते हैं वो सेम टाइप की वैल्यू वाले ही यूज होते हैं। अगर हम ये एक वेरिएबल क्रिएट कर लें, लिस्ट का फंक्शन जब आप कॉल करेंगे तो उससे लिस्ट बन जाएगी। एक्सक्यूज मी, आ, एक्सक्यूज मी, जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि प्लीज इसको थोड़ा जूम कर दें अपनी स्क्रीन को, उनको सही तरह विजिबल नहीं है। ऑलराइट। थैंक यू। ओके, ऑलराइट। अब आप लोगों को उम्मीद है नज़र आ रहा होगा। ओके, तो ये लिस्ट का फंक्शन जो है, ये लिस्ट जनरेट करेगा। बेसिकली इसके अंदर लेट्स से हम पहले नेम ऐड करते हैं, उसके बाद हम इसमें एज ऐड करते हैं, उसके बाद हम प्रोफेशन ऐड करते हैं। तो ये आपके पास लिस्ट बन गई। इसके अंदर अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं। अब लिस्ट के अंदर से अगर आप ऑब्जेक्ट को रिट्रीव करते हैं, तो ओके, यहाँ पे जब मैं रिट्रीव कर रहा हूँ तो मुझे एक और चीज़ याद आई। जी, एक चीज़ जो बेसिक डिफरेंस आर में और बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस में है, वो ये है कि आर के अंदर जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट नहीं होती, 1 से स्टार्ट होती है।
बाकी सब लैंग्वेजेस में इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है। आपने अरे में से, लिस्ट में से, डिक्शनरी में से, कहीं से भी आपने ऑब्जेक्ट रिट्रीव करना है तो आपके पास जीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी। बट आर के अंदर अगर आप जीरो पुट करेंगे तो आपके पास कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। आर में हमेशा इंडेक्सिंग वन से स्टार्ट होगी। बेसिकली इंडेक्सिंग के लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं और इंडेक्स नंबर प्रोवाइड करते हैं। तो अब इस तरह जब हमने किया है तो ये एक लिस्ट का ऑब्जेक्ट ही रिटर्न हुआ है। अगर आपने इसको उसमें कन्वर्ट करना है जो एक्चुअली करेक्टर का ऑब्जेक्ट है तो आपको दो ब्रैकेट्स डालने पड़ेंगे स्क्वायर। अब ये करेक्टर वेक्टर में कन्वर्ट हो गया। तो लिस्ट जो है आर के अंदर, इसको नेम भी हम कर सकते हैं। तो इसका एक नेम का एट्रीब्यूट होता है। इस वक्त अगर हम देखें नेम्स माई लिस्ट तो आपके पास नल है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप इसको कुछ असाइन करें, इसके लिए हम सी का ऑपरेशन यूज करेंगे। सी का फंक्शन, सी बेसिकली वेक्टर क्रिएट करता है। तो इसके अंदर हमारे पास तीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे तो हम तीन नेम्स इसमें स्पेसिफाई कर देते हैं। तो फर्स्ट नेम है, सेकंड एज है और थर्ड प्रोफेशन। अब जब हम माई लिस्ट को प्रिंट करते हैं तो इसके अंदर नेम्ड एट्रीब्यूट्स हैं और उसकी वैल्यूज हैं। अगर आप किसी देख रहे हैं कि आप इसके अंदर डॉलर का साइन और उसके बाद आगे एट्रीब्यूट का नेम है। अगर आप इसके अंदर रिट्रीव करना चाहते हैं किसी एक वैल्यू को तो आप ये डॉलर का साइन लगाएंगे और उसके बाद एट्रीब्यूट का नाम लिखेंगे। पहले डाटा स्ट्रक्चर का नाम जिस पे आपने असाइन किया हुआ है, उसके बाद डॉलर और उसके बाद उसका एट्रीब्यूट का नेम। तो आपके पास वो वैल्यू रिट्रीव हो जाएगी। ये इस चीज़ पे मैंने बात इसलिए की क्योंकि लिस्ट वैसे इतनी यूज़ नहीं होती, लेकिन ये जो इंडेक्सिंग और एट्रीब्यूट रिट्रीवल का मेथड है ये बेसिकली जब हम डाटा फ्रेम्स पे काम कर रहे होते हैं, जो कि आप मोस्टली 90% ऑफ द टाइम आप डाटा फ्रेम्स पे काम करेंगे, तो डाटा फ्रेम में इसी तरीके से आप एट्रीब्यूट्स और कॉलम्स रिट्रीव करते हैं। अच्छा बुखारी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक सवाल अब बीच में इसलिए मैंने इंटरप्ट किया। वो ये है कि समवन आस्क्ड कि ये ब्रेसेस में वन बार बार क्यों यूज हो रहा है स्टार्ट में हर दफा। वन Like you आर use यू the one in the start of the curly braces, square braces, you know. यस, ऑल राइट। वन बेसिकली मैं चेक सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा था। वन इंडेक्स पोजीशन है माई लिस्ट के अंदर। जिस तरह हम देख रहे हैं ना, माई लिस्ट की अगर हम लेंथ देखें तो इसके अंदर तीन एलिमेंट्स हैं। तो जब हम एलिमेंट्स को निकालना चाहते हैं ना इसमें से, तो हम इंडेक्स पोजीशन देते हैं। अगर हम फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन देंगे तो फर्स्ट एलिमेंट आएगा, सेकंड देंगे तो सेकंड आएगा, और थर्ड इंडेक्स पोजीशन देंगे तो थर्ड एलिमेंट आएगा। इस वजह से मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर वन एंटर कर रहा था। तो जब हम इनको नेम्ड बना देते हैं तो फिर हम नेम से भी इनको एड्रेस कर सकते हैं। जिस तरह मैंने वन किया था तो वन से आपके पास फर्स्ट एलिमेंट रिट्रीव हो गया। इसी तरह हम टू करेंगे तो टू से सेकंड एलिमेंट रिट्रीव हो जाएगा। इस वजह से मैं ये वन सिर्फ एग्जांपल के तौर पे शो कर रहा था। ऑलराइट, इससे आगे मूव करते हैं। जो हमने ये न्यूमेरिक वेक्टर बनाया हुआ था, इसी से मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चलता हूँ। इससे हम आगे इसको एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। मैट्रिक्स का बेसिकली ये फर्क होता है, जो वेक्टर होता है वो लीनियर होता है, उसके अंदर एक डायमेंशन वन होती है, बाकी दूसरी डायमेंशन जो है वो कोई भी नंबर होता है, मतलब वो वन डायमेंशनल होता है। और जब हम इसकी बात करते हैं मैट्रिक्स की, तो वो टू डायमेंशनल है। तो जब हम इसकी डायमेंशन चेक करें एक लीनियर वेक्टर की, तो हमारे पास नल आती है। तो हम इसी ए को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक मैट्रिक्स में इसकी डायमेंशंस स्पेसिफाई करके। डायमेंशंस बेसिकली आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि डायमेंशंस उस पर पूरी भी उतर रही हूँ। मतलब अगर आपने 4 रोज बनाने हैं और 5 कॉलम्स बनाने हैं तो आपके पास 20 एलिमेंट्स भी होने चाहिए। या फिर अगर आपने 10 रोज बनाने हैं और 2 कॉलम्स बनाने हैं तो उस हिसाब से आपके पास एलिमेंट्स होने चाहिए।
तो बेसिकली इसके लिए भी आप सी का बेसिकली जो नेम है कंकैटिनेशन है। कंकैटिनेशन का ऑपरेशन यूज करेंगे जिसमें आप एक वेक्टर बनाएंगे। इसके अंदर पहले आप नंबर ऑफ रोज देंगे, उसके बाद आप नंबर ऑफ कॉलम्स देंगे। तो ये आपके पास अब एक मैट्रिक्स क्रिएट हो गया। जब आप मैट्रिक्स इस वजह से मैं स्टडी कर रहा हूँ क्योंकि ये जो इसके अंदर जो इंडेक्सिंग का मेथड है ना, वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है जब हम डाटा फ्रेम्स यूज़ करेंगे उससे। तो स्लोली स्लोली हम बिल्ड करेंगे, आज डाटा फ्रेम तक जाएंगे। बहुत ज़्यादा आपको ओवरबर्डनाइज नहीं करूंगा ताकि आपको ये चीज़ें समझ आ जाएं, तो नेक्स्ट डे हम इसको मज़ीद आगे लेके चलेंगे। मैट्रिक्स में से वैल्यू निकालने के लिए बेसिकली आपको दो इंडेक्स पोजीशन देनी चाहिए। यहाँ पर आप स्क्वायर ब्रैकेट्स जैसे पहले यूज कर रहे थे, उसके अंदर आप पहले रो पोजीशन देंगे। लेट्स से हम थर्ड रो में से रिट्रीव करना चाह रहे हैं, यहाँ पर आपको रो नंबर्स भी नजर आ रहे हैं। ये चीज ध्यान में रखनी है, जीरो नहीं ऐड करना, जीरो नहीं है। हर जगह आर के अंदर इंडेक्सिंग वन से स्टार्ट होती है, रो नंबर और ये इसका कॉलम नंबर भी। जब हमने ये 3 2 स्पेसिफाई किया तो थर्ड रो में से सेकेंड एलिमेंट जो कि 7 है वो रिट्रीव हो गया। इसी तरह अगर आप इसमें 3 के आगे कॉमा डालेंगे तो आपके पास थर्ड रो पूरा रिट्रीव हो गया। और अगर आप कॉमा उससे पहले डालेंगे, मतलब आप बेसिकली इसके अंदर आप ये कर रहे हैं कि आप जो कॉलम का एट्रीब्यूट है ना उसको स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, मींस थर्ड रो एंड ऑल कॉलम्स। इसमें आप रो का कॉलम स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, मींस थर्ड कॉलम एंड ऑल रोज। तो ये आपके पास पूरा जो थर्ड कॉलम है वो आपके पास रिट्रीव हो गया, 9 10 11 12। ऑल राइट, इसके बाद हम इसी को डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं। डाटा फ्रेम में और मैट्रिक्स में ये फ़र्क है कि डाटा फ्रेम में आपके पास जो कॉलम्स होते हैं ना वो नेम्ड होते हैं, और रोज जो होते हैं ना वो इंडेक्स पोजीशन से आप रिट्रीव कर सकते हैं। तो इसको डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं। डाटा फ्रेम के लिए बेसिकली डाटा डॉट फ्रेम एक फंक्शन है आर के अंदर, ये आप यूज़ कर सकते हैं। डाटा फ्रेम सिंपली जिस तरह एक एक्सेल शीट में आपके पास रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं, उसी तरह आप इसको समझ लें। इसके अंदर यूजुअली हम एक्सेल फाइल्स, सीएसवी फाइल्स को ही डाटा फ्रेम में या टेबल में कन्वर्ट करते हैं, तो उससे हम रिट्रीव करते हैं। अब क्योंकि हमारे पास वेरिएबल्स के नेम्स नहीं थे, ये अननेम्ड था, तो उसने खुद से ही वेरिएबल के नेम दे दिए हैं, x1 x2 x3 x4 x5। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो रो की डिफरेंट वो पोजीशंस थी वो हमारे पास वैसी की वैसी रही हैं। तो अगर हम अब इस डाटा फ्रेम में से कोई एक कॉलम निकालना चाह रहे हैं तो हम सिंपली उसी तरह जिस तरह हम लिस्ट से निकाला था, हम परसेंटेज का साइन देंगे और उसके बाद आगे हम वो आ, उस रो का नाम, कॉलम का नाम सॉरी, हम लिखेंगे। तो हमारे पास वो वाला पूरा कॉलम रिट्रीव हो जाएगा। इसको रिट्रीव करने का एक और तरीका ये भी है कि आप इसके अंदर वो वैल्यू स्पेसिफाई करें। इसमें ये फ़र्क है कि ये भी हमारे पास, अगर हम इसकी क्लास देखें, इस चीज़ से आपको क्लियर होगा। जब आपने क्लास देखी तो ये डाटा फ्रेम है। बेसिकली जब आप इस तरीके से उसको करते हैं तो वो एक डाटा फ्रेम रिटर्न हो जाता है जिसके अंदर सिर्फ आपके पास वही वाला कॉलम आया है। लेकिन जब आपने दूसरे तरीके से, इस तरीके से वो किया, तो अगर हम इसकी क्लास देखें तो ये आपके पास इंटीजर वेक्टर यानी डी रेफरेंस होके वो आपके पास निकल आया। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप इसमें देख सकते हैं। क्लास एक बहुत हेल्पफुल फंक्शन है। आपने क्योंकि जब आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ में इनपुट के तौर पे एंटर कर रहे होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप उस चीज़ की क्लास क्या है। तो आप बेसिकली क्लास चेक करते रहें जिस चीज़ की भी, बाद में आपको देख के ही आइडिया हो जाएगा कि ये किस क्लास में है और किस में नहीं है। तो इस तरह जब आप रिट्रीव करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ आपके पास रिट्रीव हो रही है। जब आप डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स डालते हैं
और सेम यही मेथड यूज़ करते हैं, तो ये आपके पास करेक्टर सॉरी न्यूमेरिक वेक्टर ही रिटर्न हो रहा है, इंटीजर वेक्टर। इसकी अगर हम क्लास चेक करें तो आपके पास इंटीजर वेक्टर है। ओके, अब मैं सब्सक्रिप्टिंग पे थोड़ी सी बात करूंगा, उसके बाद हम इसको क्लोज करते हैं, बाकी हम बात कल करेंगे। तो अगर हम ए को दोबारा क्रिएट करते हैं, एक सिंपल वेक्टर से स्टार्ट करते हैं जो कि बेहतर रहेगा। ओके, आप लोगों को आइडिया होगा बुलियन वेरिएबल्स का, जो कि एक ट्रू वैल्यू देते हैं या फॉल्स वैल्यू देते हैं। सिर्फ दो टाइप की वैल्यूज उसमें स्टोर करवा सकते हैं। तो आर के अंदर एक चीज बहुत ही अच्छी ये बिल्ट इन है कि आप पूरे वेक्टर की वैल्यूज, आपसे इस वेक्टर का वेरिएबल से आप किसी एक वैल्यू के साथ भी आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आपको आइडिया होगा। लेट्स से आप देखना चाहते हैं कि इसमें से ये जो 20 वैल्यूज हैं, इसमें 10 से बड़ी कौन सी हैं। तो 10 से बड़ी आप सिंपली जो वेक्टर है उसका नेम ग्रेटर देन साइन, यानी 10 से बड़ी कौन सी है, तो हम इस पे ये करते हैं। तो हमारे पास देखें ये एक बूलियन वेक्टर रिटर्न हुआ है। तो इसमें हमारे पास 10 से छोटी वाली सब जो आई हैं वो फॉल्स हैं, और उससे जो बड़ी हैं वो सब ट्रू आई हैं। अब लेट्स से हम इस बूलियन वेक्टर को यूज करके सिर्फ वो वाली वैल्यूज रिट्रीव करना चाह रहे हैं जो 10 से बड़ी हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत काम आएगी जब बाद में आप डाटा फ्रेम्स और प्रॉपर डाटा के साथ काम कर रहे होंगे, तो आप इसी तरह कंडीशंस दे के डाटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसको सबसेट करेंगे। सिंपली जब आपने ये करना है, जिस तरह आप इंडेक्सिंग के लिए यूज़ करते थे स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसके अंदर आपने यही वाली कंडीशन इस तरह ही लिख देनी है, ए ग्रेटर देन 10। आप देख सकते हैं कि इसने बेसिकली क्या किया है, इसने जहां जहां भी ये चीज़ ट्रू थी ना, उस चीज़ को इसने रिटर्न कर दिया, जहां जहां फॉल्स थी उसको ओमिट कर दिया। इतना सिंपल है। अगर हम इसके अंदर देखना चाहते हैं कि 10 से छोटी कौन सी है, तो हमारे पास जो ये हैं ये सारी वैल्यूज रिटर्न हो जाएंगी। इसको बूलियन इंडेक्सिंग कहते हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप जब आपके पास डाटा फ्रेम होगा तो डाटा फ्रेम में आप कॉलम नेम के हिसाब से एड्रेस करेंगे। तो कॉलम नेम से आप किसी भी एक कॉलम नेम की वैल्यू पे कुछ चेक लगाएंगे, और उससे उस चेक पे जो चीज़ें पूरी उतरती होंगी वो आपके पास वैल्यू से रिटर्न हो जाएंगी। लेट्स से आपके पास एम्प्लॉय का डाटा है, एम्प्लॉय का नेम है, उसके जो उस टाइम डेजिग्नेशन है वो है, और उसकी सैलरी है। आप निकालना चाह रहे हैं कि कौन से ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी 1 लाख से ज़्यादा तनख्वाह है। तो आप बेसिकली सैलरी वाले कॉलम पे ये वाला चेक लगाएंगे कि सैलरी ग्रेटर देन 1 लाख। तो आपके पास बूलियन वैल्यूज आ जाएंगी किन की हैं और किन की नहीं है। जब आप उसको इस तरीके से डाटा फ्रेम में पुट करेंगे तो आपके पास सिर्फ वही वाले रोज रह जाएंगे जिनकी सैलरीज उस तरह होंगी। इस चीज़ को हम कल देखेंगे। बाकी ये है कि आपको इस चीज़ का आइडिया हो गया होगा कि बूलियन इंडेक्सिंग किस तरह से होती है। तो आपका अभी भी 8 बजे भी आप में से बहुत सारे लोगों ने सेशन एक अटेंड करना होगा, तो आई विल गिव यू 10 मिनट्स टू टेक अ ब्रेक। उसके बाद आप अगला सेशन अटेंड कर सकते हैं। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला। बाकी ये कि अभी किसी क्वेश्चंस हैं तो क्विकली मुझे बताएं, मैं 2-3 मिनट में उसको आंसर करता हूँ, उसके बाद हम इसको क्लोज करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी बोलें। सर ये एंड पे जो आपने ये बूलियन वैल्यू निकाली है, उसकी लेफ्ट तरफ सर ब्रैकेट में 13 लिखा हुआ था सर, उसका थोड़ा बता दें। 13 कहाँ पे? सर ये सेकंड लास्ट, ये ट्रू 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 के लेफ्ट पे। ओह 13, ओके। ये बेसिकली आपको बता रहा है कि यहाँ से इंडेक्स पोजीशन कौन सी है। जब बहुत सारी वैल्यूज डिस्प्ले होती है ना, तो अब यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू है ना, इस बेसिकली इस आउटपुट की, इसकी इंडेक्स पोजीशन 1 है, और यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू है इसकी इंडेक्स पोजीशन 13 है। अगर आप इसको काउंट करें तो यहाँ से यहाँ तक 12 बनेंगी, और यहाँ से आगे 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। इस तरीके से इसको आउटपुट में डिस्प्ले करता था, आपके हेल्पफुल हो। सर ये आर शुक्रिया। आर लैंग्वेज का मैटलैब के साथ क्या रिजेम्बलेंस है? सॉरी कुडंट हियर यू, दोबारा बोलें। सर ये आर लैंग्वेज का मैटलैब के साथ क्या रिजेम्बलेंस है?
मैटलैब के साथ बेसिकली मैटलैब मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं की, लेकिन मैटलैब के साथ इसका रिजेम्बलेंस इस तरह है कि मैटलैब के अंदर भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो होते हैं ना वो बिल्ट इन होते हैं। जिस तरह मैट्रिसेस आप यूज़ कर रहे हैं तो आप वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस उसमें परफॉर्म कर सकते हैं। ये जो अभी हमने परफॉर्म किया a greater than 10, ये एक वेक्टराइज्ड ऑपरेशन था। मीन्स आप एक पूरे डाटा स्ट्रक्चर को जिसके अंदर काफ़ी सारी वैल्यूज़ हैं उसको किसी एक वैल्यू से वेक्टराइज्ड कंपैरिजन कर रहे हो। जबकि पाइथन में अगर आपने ये चीज़ करनी है एक लिस्ट को, वो तो आपको आप नमपाई में तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं लिस्ट के उसके बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपको 1 by 1 वैल्यू लेनी पड़ेगी और उसको कंपेयर करके एक नई लिस्ट बनानी पड़ेगी जो कि आपको इस तरह का आउटपुट देगी। तो वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस कॉमन है दोनों में। जी, किसी ने पूछा हुआ है क्विज कल होगा? जी, क्विज कल ही होगा। किसी और का कोई क्वेश्चन हो? अच्छा, आई थिंक किसी ने चैट में भी ऊपर कुछ सवाल पूछे हुए हैं, सिंस सम पीपल आर नॉट कंफर्टेबल यूजिंग देयर माइक्स। तो आई थिंक अक्सा आस्क्ड अ गुड क्वेश्चन, उसको ये पता चल जाए कि यहाँ पे आर क्यों पढ़ाई जा रही है। जी, शुरू में मैंने ये चीज़ कवर की थी कि आर क्यों करवा रहे हैं पाइथन के बजाय। बेसिकली दोनों लैंग्वेजेस ही ब्रिलियंट हैं इस चीज़ के लिए, डाटा साइंस के लिए। और कुछ स्ट्रेंथ्स आर की बेहतर हैं और कुछ वीकनेसेस हैं। ऑब्वियसली दोनों लैंग्वेजेस की इसी तरह कुछ की कुछ वीकनेसेस हैं और कुछ स्ट्रेंथ्स हैं। तो आर करवाने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोगों को पाइथन पता है और पाइथन हर जगह यूज़ हो रही है, वो बहुत कॉमन लैंग्वेज है, आप इजीली वो कहीं से भी कर सकते हैं। तो मैं ये चाह रहा था कि लोग खुद कोई भी जाके आर नहीं सीखेगा। तो आप अगर यहाँ आए, आपने टाइम दिया, तो आपको ऐसी चीज़ सीखने को मिले जो कि आपको फ़ायदा भी देगी। बेसिकली मुझे काफ़ी सारे फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स इस तरह के मिलते हैं जो अगले बंदे को सिर्फ स्पेसिफिकली आर में प्रोजेक्ट चाहिए होता है। ये चीज़ इस वजह से होती है क्योंकि आर जो है वो एकेडमिक्स और रिसर्च में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, वो आर को यूज़ करते हैं। बेसिकली मैं भी एक रिसर्चर के साथ रिसर्च कर रहा था, तो हम लोगों को सैटेलाइट इमेजरी से वाटर क्वालिटी टेस्ट करने का वो चाहिए थे। उस तरह के हम चाह रहे थे कि कुछ प्री बिल्ट हमें पैकेजेस मिलें जिसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ दैट हम बिल्ड करें। तो जब हमने सर्च किया तो पाइथन में ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट, बहुत कम हमें पैकेजेस मिले। लेकिन आर में उस टाइप के रिसर्च पैकेजेस भरे पड़े थे, बहुत ज़्यादा पैकेजेस थे। इसी तरह जब भी आपके यूज़ पे डिपेंड करता है। कुछ डोमेन्स हैं जहाँ पे आर डोमिनेट करती है, जिस तरह रिसर्च है, तो आपको ये चीज़ भी आनी चाहिए। यहाँ से जिस तरह मैंने कहा, पहले भी कहा था कि आप आर से पाइथन पे मूव करना चाह रहे हैं डाटा एनालिसिस के लिए, बहुत ही आसान है, कोई इशू नहीं है। सर, डेटा साइंटिस्ट के लिए आर पाइथन लैंग्वेज एनफ है या फिर बाकी लैंग्वेज के भी नॉलेज होना जरूरी है, जस्ट लाइक C++ एक्सेट्रा? देखें, डिपेंड करता है कि आप किस तरह का काम कर रहे हैं। अगर आपने लेट्स से आपका टास्क ये है कि आपने एक रिकमेंडेशन सिस्टम बनाना है, आपको कोई इशू नहीं है, आपको कोई और लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ पाइथन में या सिर्फ आर में कर सकते हैं। फोरकास्टिंग के लिए आपने कोई मॉडल क्रिएट करना है, वो भी आप दोनों लैंग्वेजेस में कर सकते हैं। आपके टास्क पे डिपेंड करता है। लेट्स से आपको कोई कहता है कि आपने उसके बाद उसकी वेब ऐप भी बनानी है, तो वो भी आप पाइथन के साथ बना सकते हैं। आर के साथ भी आई एम श्योर देयर वुड बी पैकेजेस जिसमें आप बना सकते हैं। ऑन टॉप ऑफ माई हेड आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। तो आपके काम पे डिपेंड करता है। यूजुअली 90% ऑफ द टाइम आपको यही दो लैंग्वेजेस सफिशिएंट होंगी। सर, डेटा साइंस और डेटा इंजीनियर सेम है या डिफरेंस है इसमें कुछ? डेटा साइंस और डेटा इंजीनियर में फ़र्क होता है। डेटा साइंस बेसिकली जो है, डेटा इंजीनियर जो है वो जिस तरह फॉर एग्जांपल वो प्लेटफॉर्म्स भी क्रिएट करता है जिनसे आप एनालिसिस करते हैं। जिस तरह आपके पास डेटाबेसेस हो गई और इस टाइप की चीज़ें, ये चीज़ें भी वो लोग डेटा इंजीनियर्स का काम बेसिकली क्रिएशन होता है, इंजीनियरिंग होता है। और उनको चीज़ों का ज़्यादा लो लेवल पे अंडरस्टैंडिंग होती है क्रिएशन पे। लेकिन जो डाटा साइंटिस्ट होता है वो बनी बनाए प्लेटफॉर्म्स को यूजुअली इस्तेमाल करके मीनिंगफुल रिजल्ट्स देता है, जो कि अगर देखा जाए तो दोनों की काम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेकिन पर्सनली मुझे डाटा साइंस ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है।
जी, किसी ने पूछा हुआ है डाटा साइंस के लिए फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं। आप अपवर्क यूज़ कर सकते हैं, freelancer.com, फाइवर पे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, आप इनमें से कोई भी यूज़ करें, एक्सप्लोर करें। ये देख लें कि आप पहले उस पर कुछ गाइडलाइंस चेक कर लें, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, किस तरीके से आप उसमें वो कर सकते हैं। ऑलराइट, आई गेस अब सेशन क्लोज करना चाहिए। बाकी भी किसी के क्वेश्चंस हुए तो कल इंशाल्लाह एड्रेस किए जाएंगे। आप लोगों में से बहुत सारों ने अगला सेशन अटेंड करना होगा, तो लेट्स क्लोज इट हियर। थैंक यू वेरी मच आप लोगों का टाइम देने के लिए, और आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह हाफिज।